आज बहुत इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, इसके लिए मैंने आपको बुलाया है। आज जो हमारा ढांचा का कॉन्सेप्ट था उसको अग्री करके, उसको मान के श्रीमती पताल कन्या हैज़ ऑफिशियली डिसाइडेड to withdraw all her 28 candidates in the interest of the larger cause of unity। और उससे भी ज़्यादा पताल कन्या herself has agreed to my request of becoming the principal advisor to the TIPRA MOTHA, and her advice will also help us in the upcoming election. So Patal Kanya has decided to keep TPF as a non-political organization and herself has decided to become a chief principal advisor for TIPRA herself, thereby becoming a part of our family. This is a very good move. I appreciate this move and I'm very happy that ये अंडरस्टैंडिंग के बाद इसको हम अलायंस भी नहीं बोल सकते, क्योंकि ये अलायंस नहीं, हम लोग एक ही परिवार के हैं, एक ही बैनर, एक ही सिंबल, एक ही फ्लैग के अंदर हम लोग लड़ेंगे। और पताल कन्या और हमारा जो अंडरस्टैंडिंग बहुत पहले से था वो आज पूरा हुआ है, और मैं पताल कन्या को भी एक्सटेंड करता हूँ सपोर्ट जो उनका स्ट्रगल है रिगार्डिंग इलीगल माइग्रेंट्स, रिगार्डिंग NRC CA, जिसमें दोनों का केस हम लोग का चल रहा है। और आज सच में बहुत बड़ा दिन है। बहुत पॉलिटिकल लीडर्स लोग सीट में अंडरस्टैंडिंग करते हैं, लेकिन आइडियोलॉजी में अंडरस्टैंडिंग करने वाले बहुत कम होते हैं। आज पताल और हम आइडियोलॉजिकली एक हुए हैं, और अब आप देखिए कि पताल के हेल्प से आने वाले ADC इलेक्शन में हम और मजबूत होकर और ढांचा लाकर और जोर से ज़मीन में उतर के लड़ेंगे। बेलाइन हम भाई, थैंक यू। कुछ लिस्ट आज शाम तक हो जाएगा और कुछ कल। सर एनपीटी के साथ आप लोग का क्या डिसाइड हो? वो बात चल रहा है, आज शाम तक क्लियर हो जाएगा। और आईपीएफटी के साथ आप लोग का तो क्या क्यों? आईपीएफटी के संग मैंने अलायंस नहीं तोड़ा है, उनको अपना पोजीशन क्लियर करना चाहिए कि वो बीजेपी के साथ है या नहीं है। लेकिन हमारा जो अंडरस्टैंडिंग हुआ था वो है क्लीन रीजनल अलायंस, क्लीन रीजनल अलायंस। और वो क्लीन रीजनल अलायंस अभी मुझे मीडिया से मालूम पड़ रहा है कि वो बीजेपी से बात कर रहे हैं, लेकिन आईपीएफटी के संग हमारा जो अंडरस्टैंडिंग हुआ था वो था कि जब तक हमें हमारा पॉलिटिकल डिमांड इन राइटिंग नहीं मिलता हम कोई नेशनल पार्टी से बात नहीं करेंगे। तो आईपीएफटी के साथ अलायंस का बात अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो नेशनल पार्टी से बात कर रहे हैं और अब हम भी आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने अपना कैंडिडेट का लिस्ट अनाउंस कर दिया, हमसे बात नहीं किया, तो समझ में आता है कि मुझे लगता है कि अब ये अलायंस आगे चलने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। My question to KOKTWMA, why did it take so long to come and join? TPF is a socio-political organization since from 2014, 30th June, and TPF motto is our land, our rights, and ideology is detect, delete, deport all illegal immigrants from TRIPURA, India, and our demand is NRC, cut up your date 1948, 19 July, and we oppose CAA. And now our greater interest for the people, for the native people of the indigenous people of the TIPRA, we are going to support the politically our His Highness Bubagra, and TPF is a socio-political organization, but now we have decided to support Bubagra and for the interest of the people, and ADC election is very important, and ADC election only upcoming ADC election there is no now GK Rao is sitting, but it is the indigenous people rights. There is a lots of violation indigenous people right. That's why we have decided to protect and to arise our rights.
That's why we have decided to upcoming ADC election. We will be participate in the election part. But TPF is a socio-political organization. But as a people of TIPRA, as a TIPRA, we support fully heart and soul to our Bubagra politically, and we silence politically through Bubagra. And I will support heart and soul. There is no any condition of the vote bank politics. There is condition is our ideology. Chandan, This can is I my tell you point. something? Why did it take so long? I think she wanted clarification that we have to have a clean regional alliance. Regional alliance. Regional party alliance. My But there is I have seen IPFT is the alliance with BJP. Then how IPFT regional alliance clean, and till today there is the two cabinet minister, and there is not called pure alliance regional. Can I just say something? My understanding with IPFT was that there will be no alliance with any national party unless we get our rights in writing. But what I am seeing is that there is some negotiations going on. I am hearing it from media. I have not been called even once by BJP. I am not the part of the BJP alliance. And they have signed an agreement with me, which you all media knows. But they are also having talk with BJP, which is where I am not a part of. It makes it very uncomfortable for me to explain to people कि अलायंस तो हमारे साथ हुआ है. अलायंस में लिखा गया है कि हम नेशनल पार्टी के संग अलायंस नहीं करेंगे जब तक राइटिंग में नहीं लिखा जाएगा कि हम हमारा पॉलिटिकल डिमांड्स को आप राइटिंग में दीजिए. लेकिन तब मुझे सुनने में आ रहा है कि हर 2 दिन के बाद मीटिंग हो रही है. तो ये मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ. इसी के लिए पाताल भी वेट कर रही थी. मैंने पाताल को अपना पोजीशन, मैंने पाताल को पूरा अपना बात बताया, वो भी ऑब्जर्व किया. एंड इवेंचुअली सबको एक बात मालूम होना चाहिए, मैं अपना रीजनल लाइन से चल रहा हूँ. अगर कोई उससे बाहर निकलता है तो वो उसका सवाल का जवाब वही दे, मैं नहीं दूंगा. इट इज़ द इंटरनल मैटर. माई मैटर इज दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट अ रीजनल, क्लीन रीजनल अलायंस एंड कॉन्टेस्ट द ADC election. My question to you is, since TIPRA and IPFT are still there in alliance, and now then since they are in talk with BJP, will TIPRA continue to talk with IPFT? Because No, it's going to happen. no, we will not, because they will already announced 18 seats. They are still meeting BJP. Without consulting. And हमसे पूछा नहीं ना, हमसे पूछ के तो आप अलायंस में हमसे पूछा नहीं गया है. So it does not make any sense. See, alliance cannot happen because only on seats. I am not interested in seats. I am interested in ideology. What is our ideology? We cannot go and tell our people that this is our ideology and then tomorrow for seats compromise on our ideology. So today I may be 0, but I will fight, and I may remain 0, but I will not compromise on my ideology. That is very clear. And if the BJP has to talk, I had already told the IPFT, हम अगरतला में बात नहीं करेंगे. अगर बात करना है तो हमें दिल्ली में बात करना चाहिए. लेकिन यहाँ में तो हम 2 किलोमीटर दूर किसी के घर में जाके बात कर रहे हैं. आप दिल्ली को छोड़ो, हम तो अगरतला से भी बाहर निकल के बात, गुवाहाटी में भी बात नहीं हो रहा है. अगर असेंबली इलेक्शन के बाद तो गुवाहाटी में बात हो रहा था, अब तो गुवाहाटी में भी नहीं हो रहा है, अब तो अगरतला में ही हो रहा है. मैं तो दिल्ली का बात कर रहा था, दिल्ली तो बहुत दूर है. So I don't see any possibility of any alliance between IPFT and me. But I'll still wait because NC Babu is a very senior man. Mewar is someone I've known for very long. I will still wait to see कि वो क्या करने वाले हैं आने वाले दिन में. मैं किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलूँगा, मैं IPFT के खिलाफ कुछ नहीं बोलने वाला हूँ. मेरा लाइन स्ट्रेट है, मैं अपने लाइन में चलूँगा. उनका लाइन जो है वो उनकी लाइन में चले. पॉलिटिक्स में तू मैं करने से हमारा ही दफा का नुकसान होगा. मैं ऐसा गंदा राजनीति नहीं करना चाहता हूँ. जब मैंने कांग्रेस छोड़ा था, मैंने राहुल गांधी, सोनिया गांधी के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा, आज भी नहीं कहता हूँ. आज अगर ये अलायंस नहीं हुआ तो मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलूँगा. लेकिन मेरा आइडियोलॉजी जो पाताल के साथ है, दूसरे रीजनल पार्टीज भी आए हैं उनके साथ है, वो स्ट्रेट है कि हम अपने आइडियोलॉजी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे. सीट्स के लिए, रुपये के लिए हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे. सुनिए सर, आने वाला दिन में आपका लाइन क्या होगा? आप
हमारा लाइन बहुत क्लियर है. My line is very clear. It'll take you 1 hour for me to explain. But my line is very clear. If you go through the history, I think all of them are also aware. My line is very clear on CAA, on NRC, on the future of the indigenous people, and they cannot be compromised on seat sharing or short-term alliances which are not ethical. That is what I am saying. INPT के साथ वो मैंने अभी जवाब दे दिया है. बात चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है, और मैं आशा कर, देखिए एक बात है, मैं विजय रामखोल का बहुत आदर करता हूँ. विजय रामखोल का मेरा पर्सनल रिलेशनशिप है, और जो भी हो INPT के साथ अलायंस हो या ना हो, मैं विजय रामखोल के खिलाफ कैंडिडेट नहीं दूंगा. ये मेरा बात बहुत क्लियर है. मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और ऐसा दिन कभी नहीं आना चाहिए कि एक पेट्रियट, सन ऑफ द सॉइल जैसा विजय रामखोल, जिसने अपना पूरा ज़िंदगी अपने स्टेट के लिए दिया है, अपने कम्युनिटी के लिए दिया है, पूरे 19 ट्राइब्स के लिए दिया है, पूरे स्टेट के लिए दिया है, मैं विजय रामखोल के खिलाफ एक कैंडिडेट भी नहीं रखूँगा. इतना मेरा रिस्पेक्ट है, मैं ये क्लियर करता हूँ. INPT मेरे लिए विजय रामखोल है. विजय रामखोल नहीं है तो INPT भी नहीं है. ये मेरा लाइन है. मैं विजय रामखोल को आदर करता हूँ, और ये उनसे नई बात करके भी मैं अनाउंस कर देता हूँ. महाराज एक चीज आपसे जानना चाहूँ. 19 फरवरी को TIPRA मोथा TIPRA और IPFT अलायंस बनता है. 24 को कुंभ में बहुत बड़ा रैली बनता है. क्या वो अचानक से कि IPFT के साथ जो एक अच्छा रिलेशनशिप था, अचानक ऐसा हो गया कि आपने 5 मार्च को भी वहाँ पर रैली बनाया, IPFT भी नहीं गए? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? आई डोंट नो, आप उनसे पूछिए, क्योंकि मैं तो उनके रैली में गया, मैं तो उनसे मिल रहा था. ठीक है, वो नहीं आए, वो क्यों नहीं आए, वो आप उनसे पूछिए. मैंने तो उनको निमंत्रण दिया, मैंने खुद फ़ोन करके बोला था. वो नहीं आए, वो उनका रीज़न है, आप उनसे पूछिए. लेकिन मेरा जो काम था, धर्म था, मैंने वो किया. मैं उनकी रैली में गया. उसके बाद मैंने विजय रामखोल को NC देवर्मा से भी मिलवाया. मैंने पतल कन्या के बारे भी NC बाबू से बात किया. और अगर वो BJP से बात कर रहे हैं तो वो, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता हूँ. लेकिन मैं एक ही बात करना चाहता हूँ, और सबको कहना चाहता हूँ, मेरे बहुत दोस्त भी हैं BJP में, कि महाराजा के नाम में पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए. महाराजा का खुद का एक अलग पार्टी है, और जिसको भी आना है वो उस पार्टी में आकर बात करे. मुझे दिखाकर किसी और से सीट शेयरिंग का निगोशिएशन करने का किसी को हक नहीं बनता है. और अगर किसी ने ये किया है तो ये गलत बात है, क्योंकि मेरा नाम का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए. So Thank you. Now that you have said that you are not going to give candidate against INPT. No, against Vijay Ramkhol. Okay. I am saying it before the alliance has even started. See, Chandan, I am a very different sort of guy. See, I am talking to you by name, Chandan. I don't know East Mojo. I know Chandan Pandey. I know Pinaki. I don't know ANI. I know क्या बोलता Kamal Koloi. I don't care about KOKTWMA. I know Vijay Ramkhol. And I love Vijay Ramkhol. So you're talking about. So I am not single. Wherever Vijay Ramkhol stands, he fights from 10 seats. I will not put up a candidate. My point is, Vijay Ramkhol is someone I respect. So out of respect for him, the alliance talks are still going on. But even before the alliance is announced, I am saying that Vijay Ramkhol के खिलाफ प्रद्योत माणिक्य कैंडिडेट नहीं देगा, क्योंकि मैं विजय रामखोल को दिल से प्यार करता हूं, और उसका सैक्रिफाइस जो है हमारे स्टेट के लिए, वो इतना आसान से हम लोग नहीं भूल सकते. क्योंकि इलेक्शन जीतने एक सीट के लिए आप इतना बड़ा इंसान को नीचा नहीं कर सकते. सर, कैंडिडेट सिलेक्शन हो गया है? हो गया है, और अभी थोड़ा और भी प्रोसेस में है. आज हम थोड़ा लिस्ट निकालेंगे, और कल और लिस्ट आएगा. लिस्ट प्रिपेयर करते वक्त क्या क्या दिमाग में रखा गया है कैंडिडेट सिलेक्शन के टाइम में? क्लीन रिकॉर्ड, विमेन पार्टिसिपेशन, education background, and commitment to ideology. That is the most important thing. कब तक आ सकते हैं कैंडिडेट लिस्ट? मैं आपको फर्स्ट SMS कर दूंगा, तब मीडिया को रिलीज करूंगा.